میرا نام نیشا ہے اور میں کلیڈی ڈاکٹر ہوں۔ ایک روز میں کلینک میں مریضوں کو دیکھ رہی تھی کہ خوبصورت اور معصوم سی لڑکی ایک بوڑھی عورت کے ساتھ آئی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے اسے بلایا اور مرض کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ میں بیمار نہیں ہوں، بس کمزوری ہے، مجھے طاقت کے انجیکشن لگوانے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی کیونکہ وہ دیکھنے میں کمزور نہیں لگتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے کس وجہ سے طاقت کے انجیکشن لگوانے ہیں؟ تبھی اس کے ساتھ آئی ہوئی بوڑھی عورت نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ یہ میری بیٹی ہے، جب یہ 15 سال کی ہوئی تب میں نے اس کی شادی کر دی تھی اور اب اس کی شادی کو 6 سال گزر چکے ہیں مگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ اس کی ساس کو لگتا ہے کہ یہ اندرونی طور پر کمزور ہے، اس لیے یہ طاقت کی دوا لینے آئی ہے، بس آپ کو یہ ایسا انجیکشن لگا دینا جس سے اسے اولاد ہو جائے۔ یہ سن کر مجھے بہت برا لگا اور میں نے کہا، دیکھو بی بی، ایسے انجیکشن لگانے سے اولاد نہیں ہوتی، میاں بیوی دونوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر دیکھا جاتا ہے کہ نقص آخر کس میں ہے، پھر اسی کے مطابق علاج کیا جاتا ہے۔ میں نے ذرا غصے سے کہا تو اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، دیکھیں آپ روئے مت، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو اولاد سے ضرور نوازے گا، آپ مجھے کچھ سوالوں کے جواب دیں۔ پھر میں نے اولاد نہ ہونے کے بارے میں اسے چند ضروری سوالات کیے اور پوچھا، کیا تم نے پہلے بھی کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا ہے؟ میری بات پر وہ کہنے لگی، جی ڈاکٹر صاحبہ، میں پہلے بھی 2 ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا چکی ہوں مگر میری اولاد نہیں ہوئی۔ پھر میں نے پوچھا، تمہارے ٹیسٹ بھی تو ہوئے ہوں گے، کیا تمہارے پاس پچھلی رپورٹس ہیں؟ اس نے فائل آگے کر دی اور بولی، جی یہ سب رپورٹس میں ساتھ لائی ہوں۔ میں نے رپورٹس تسلی سے دیکھی، سب ٹھیک تھی۔ پھر میں نے اس کا چیک اپ کیا، سب کچھ نارمل تھا، کوئی نقص نہیں تھا۔ پھر میں نے اسے کہا، دیکھو لڑکی، تمہیں کسی دوا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز بالکل ٹھیک ہے، کچھ انتظار کرو، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اولاد بھی ہو جائے گی۔ وہ اداس چہرے کے ساتھ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ آپ بس مجھے طاقت کے انجیکشن لگا دے۔ میں نے کہا، ارے پاگل ہو کیا، تم بالکل صحت مند ہو، اس لیے کسی انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن مت لو، بس اچھا کھاؤ پیو اور خوش رہو۔ اس کا نام صباحت تھا۔ اس نے افسردگی سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ کیسے نہ پریشان ہوں، جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس گئی انہوں نے یہی کہا کہ طاقت کے انجیکشن لگوا لو، تمہیں کمزوری ہے، ٹھیک ہو جائے گی، کمزوری دور ہوگی تو اولاد بھی ہو جائے گی۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی۔ بہرحال تمہاری تسلی کے لیے میں تمہیں کچھ طاقت کی دوا دے دیتی ہوں۔ میں نے اسے کچھ وائٹامنس وغیرہ لکھ کر دیے اور کہا کہ دوائی باقاعدگی سے کھاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کچھ دن بعد وہ دوبارہ آ گئی اور طاقت کے انجیکشن لگوانے کے لیے ضد کرنے لگی جبکہ اس کی صحت قابل رشک تھی۔ آج بھی میں نے اسے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے اور ہدایت کی کہ پہلے یہ ٹیسٹ کروا کر لاؤ، رپورٹ دیکھ کر بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے، دوا دینی ہے یا انجیکشن۔ وہ چپ چاپ چلی گئی اور ایک ہفتے بعد رپورٹس لے کر آئی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، بظاہر کمزوری نہیں تھی اور کسی قسم کی بیماری بھی نہیں تھی۔ میں نے ایک بار پھر سمجھایا کہ ابھی بھی تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے، خواہ مخواہ دوا استعمال کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن وہ میری بات نظر انداز کر کے کہنے لگی، کوئی تو دوا دے دے یا کوئی ایسا انجیکشن لگا دے جس سے میں حاملہ ہو جاؤں۔ میں نے کہا، میرے پاس کوئی ایسا انجیکشن نہیں ہے۔ اس کے اصرار پر آج پھر مجھے غصہ آیا۔ میں نے کہا، بڑی عجیب لڑکی ہو، میری بات سمجھ ہی نہیں رہی۔ میں نے دوا دینے سے انکار کر دیا اور کہا، آپ بغیر وجہ فیس دے کر یہاں مت آنا، کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ، میں کسی کو بلا وجہ دوا نہیں دیتی، بلا ضرورت دوا لینا صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ میری بات سن کر صباحت مایوس ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تبھی اس کی ماں بولے، ڈاکٹر صاحبہ اگر میری بیٹی بیمار نہ ہوتی تو ہم یہاں آپ کے پاس کیوں آتے؟ محلے کی عورتوں نے آپ کی بہت تعریف کی ہے، اس لیے ہم یقین کے ساتھ آئے تھے، مجھے امید تھی کہ آپ کے علاج سے میری بیٹی کو جلد اولاد ہو جائے گی، مگر آپ ڈاکٹر لوگ نہ جانے کیوں توجہ نہیں دیتے۔ میں نے کہا، بی بی ڈاکٹر مریض پر ضرور توجہ دیتا ہے مگر جو بیمار نہ ہو اسے بلا وجہ دوا دینا ٹھیک نہیں۔ یہ کہہ کر جب میں نے صباحت کی طرف دیکھا تو وہ باقاعدہ رو رہی تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ مجھے بے چینی ہوئی کہ میری بات سے اسے ٹھیس پہنچی ہے۔ تب میں نے ہمدردی سے پوچھا، صباحت سچ سچ بتاؤ، تمہارے رونے کی آخر اصل وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تم میں جسمانی طور پر کوئی نقص نہیں اور نہ ہی کوئی بیماری، اگر میں تمہیں انجیکشن یا دوا دوں گی تو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی۔ میں نے ایک بار پھر تسلی دی کہ اصل بات بتاؤ تاکہ میں تمہارا مناسب علاج کر سکوں۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی، اس کا رونا مجھے مزید بے چین کر رہا تھا۔ تب میں نے اس کی ماں سے کہا، پیسہ کرے انہیں سول ہاسپٹل میں پروفیسر عزیزہ کو دکھا دے، میں پرچہ لکھ دیتی ہوں۔ میں ابھی لکھنے ہی لگی تھی کہ اس کی ماں بولی، ہم انہیں دکھا چکے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے کوئی ڈاکٹر پیر فقیر نہیں چھوڑا، اب آپ کے پاس آئے ہیں بڑی امیدوں کے ساتھ۔ اماں اولاد اللہ کی دین ہے، جب ہونی ہوگی ہو جائے گی، اصل بات یہ ہے کہ آپ سمجھدار ہیں، ڈاکٹر صاحبہ اگر اولاد نہ ہوئی تو اس پر سوتن پڑ جائے گی،
तब मैंने कहा, अच्छा तो ये बात है। सुबह अब बताओ तुम क्यों परेशान हो? वो बोली, सिर्फ यही नहीं, मुझे तलाक भी हो सकती है, इसलिए मैं इलाज के लिए भटक रही हूँ। मेरी सास कहती है तुम बहुत कमज़ोर हो। मैंने हज़ारों रुपए खर्च कर दिए। जहाँ जाती हूँ डॉक्टर यही कहते हैं कि जिस्मानी कमज़ोरी है, इसी वजह से औलाद नहीं हो रही, इसीलिए ताकत के इंजेक्शन लेती हूँ। मैंने पूछा, क्या तुम्हारा शोहर और ससुराल वाले पढ़े लिखे हैं? उसने कहा, नहीं डॉक्टर साहिबा, वो अनपढ़ लोग हैं, लेकिन मैंने 12 जमातें पास की हैं। मेरा शोहर दुबई में मजदूरी करता है, साल में 1.5-2 माह की छुट्टी पर आता है। मेरी असल परेशानी ये है कि मेरी सास मेरे शोहर की दूसरी शादी कराना चाहती हैं। उसके रिश्तेदार मेरे खानदान को उकसाते हैं कि पहली बीवी को छोड़ दो, ये तुम्हें कभी औलाद का सुख नहीं देगी, तुम दूसरी शादी कर लो, उस औरत से औलाद नहीं होगी, वक्त ज़ाया ना करो। शोहर तो कुछ दिन रहकर चला जाता है, उसके पीछे सास नंद मुझे ज़हनी अजियत देती हैं ताकि मैं खुद तलाक ले लूँ या घर छोड़कर चली जाऊँ। सबाहत की बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने पूछा, तुम्हारा शोहर कब लौटेगा? उसने कहा, 15 दिन या 1 महीने में आ जाएगा। मैंने कहा, जब वो आ जाए तो उसे मेरे पास ले आना, मैं उसे बात करूंगी, शायद मसला उसमें हो या उसे इलाज की ज़रूरत हो। देखो, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे औरत में मसला हो सकता है वैसे मर्द में भी हो सकता है, और इलाज के बाद सब ठीक हो जाता है। बाहर दीगर मरीज इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा, आप लोग अब जाएं, 15 दिन बाद आना, जब सबाहत का शोहर आ जाए। वो माँ बेटी बहुत जल्दी में चली गई। मेरा दिल भी बोझल हो गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि सबाहत के दुख का मेरे पास कोई फौरी इलाज नहीं। दिन ऐसे ही गुजरते गए और 3 हफ्ते बाद वो दोबारा आ गई। सबाहत के चेहरे पर आज भी उदासी छाई हुई थी। वो मेरे क्लिनिक आने से पहले ही आ चुकी थी, इसलिए सबसे पहले उन्हीं की बारी थी। मैंने फ़ौरन अंदर बुलाया और पूछा, बताओ क्या तुम्हारा शोहर आ गया? उसने कहा, जी आ गया है, लेकिन उसने आपके पास आने से मना कर दिया। कहता है, तुम्हारी लेडी डॉक्टर मुझे क्यों बुला रही है? मुझ में कोई मसला नहीं है। मैंने कहा, देखो सबाहत, सिर्फ औरत ही बांझ नहीं होती, मसला मर्द में भी हो सकता है, इसलिए शोहर को भी अपना इलाज करवाना चाहिए। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं आता तो किसी दिन उसे अकेला मेरे पास भेज दो, ताकि मैं उसकी पूरी बात उसको समझा सकूं। जब तुम दोनों की पूरी हिस्ट्री मेरे पास होगी तो ही मैं कोई माकूल मशवरा दे सकूंगी। इस मकसद के लिए दोनों का मेडिकल टेस्ट ज़रूरी होता है। तुम्हारे टेस्ट तो हो चुके हैं, अब मैं तुम्हारे शोहर के टेस्ट करवाना चाहती हूँ। डॉक्टर साहिबा, मेरा शोहर अनपढ़ देहाती है, पहले तो वो आपके पास आएगा नहीं, आया भी तो आपकी बातों का उस पर कोई असर नहीं होगा। इस तरह की बातों पर वो गुस्सा हो जाता है। मैंने अपने शोहर को बहुत समझाया, मगर वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि मर्द में भी कोई नुक्स हो सकता है। बस वो यही कहता है, तुम अपना इलाज कराओ, तुम बांझ हो। मैंने कहा, देखो बीबी, रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बांझ नहीं हो। अब अपने शोहर को लाना तुम्हारा काम है। मेरे पास नहीं आ सकता तो किसी और डॉक्टर से अपना चेकअप करवा ले। मुकम्मल इलाज की बस यही एक सूरत है। सही रहनुमाई करना मेरा फ़र्ज़ था, सो मैंने तुम्हें बता दिया। आगे अब तुम्हारा अपना मसला है। वो एक बार फिर मायूसी से रो दी और जाते हुए बोली, मैं एक बेबस औरत, क्या कर सकती हूँ? मैं तो खामन के प्यार के 2 बोलों को तरस रही हूँ। वो क्या मेरी बात मानेगा और क्या मसला हल करेगा? ये कहते हुए वो लड़की आंसू पोंछती हुई चली गई। उसे इस तरह रोता हुआ जाते देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। काश मैं उसकी कोई हेल्प कर सकती। मैं रोज़ हज़ारों मरीज देखती थी, लेकिन इस औरत में न जाने क्या बात थी कि उसके लिए दिल से दुख महसूस हो रहा था। मैं सोचने लगी कि जहालत की वजह से हमारे वतन में कितने अंधेरों ने पंजे गाड़ रखे हैं। इंसान अगर खुद अक्ल से बेगाना हो जाए तो दूसरा कोई उसके लिए क्या ही कर सकता है। लाइल्मी भी तो आदमी को मायूसी के अंधे कुएं में गिरा देती है। सबाहत का अंजाम भी बिलाखिर यही होगा कि उसका शोहर दूसरी शादी कर लेगा और वो लोग उसकी ज़िंदगी हजीरन कर देंगे, या फिर नौबत तलाक तक पहुंच जाएगी और ये खुशी का सूरज फिर कभी नहीं देख सकेगी। न जाने ऐसी मासूम लड़कियों का क्या कसूर होता है जो बरसों से जहालत की जकी में पिसती आ रही हैं। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि नर्स ने अंदर आकर बताया कि वो माँ बेटी अभी गई नहीं है, बल्कि इंतजार गाह में पड़ी कुर्सियों पर बैठी हुई है। शायद सबाहत अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं के थम जाने का इंतजार कर रही थी। जब मैंने सब मरीज चेक कर ली और क्लिनिक से बाहर जाने लगी तो मैंने नर्स से कहा कि अगर वो बैठी हैं तो उन्हें अंदर भेज दो। दोनों दोबारा अंदर आई। सबाहत की आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। मैंने उसे अपने पास बिठाया और कहा, देखो मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही है, मगर तुम अकेली के इलाज से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे शोहर को भी अपना इलाज करवाना पड़ेगा। तुम्हारे शोहर को भी अपना इलाज करवाना पड़ेगा। तुम नाउम्मीद ना हो, हौसला रखो और अल्लाह से दुआ करती रहो। मैं कुछ इंजेक्शन लिख कर दे रही हूँ, कुछ दिन लगवा लो, ये ताकत के लिए है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। नुस्खा हाथ में लेकर उसे कुछ तसल्ली हो गई। मैंने सोचा कुछ दिन इसका आर्जी इलाज जारी रखना चाहिए ताकि इसका दिल मुतमईन हो जाए। वो चंद दिन क्लिनिक आती रही और इंजेक्शन लगवाती रही। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसने अस्पताल आना ही बंद कर दिया। मैंने नर्स से पूछा,
क्या सुबहत फिर नहीं आई? नर्स ने कहा, डॉक्टर साहिबा वो आखिरी इंजेक्शन लगवाने आई थी, उसके बाद उसकी माँ आई थी। उसने बताया है कि सुबहत के शौहर ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया है और वो सदमे से बीमार पड़ गई है। वो लोग कहीं और मुंतकिल हो रहे थे। कुछ दिन बाद नर्स को पता चला कि सुबहत के शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। शायद बूढ़ी औरत ने उसके साथ राब्ता रखा हुआ था। नर्स कई दफ़ा सुबहत के घर जाकर उसे इंजेक्शन भी लगाती रही थी। ये इतला सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। सुबहत का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया, जिस पर हर वक्त खौफ के साए रहते थे। बिलाखिर उसका खौफ हकीकत का रूप धार चुका था। कुछ अरसे बाद उसकी याद जहन से धुंधली हो गई। मरीजों के हजूम में मेरी जिंदगी के दिन इसी तरह गुजरते रहे। मेरे पास सुबहत जैसी और भी कई लड़कियां आती जाती रहती थी, जिनके साथ यही सान्या होता था। डॉक्टर आखिर किस किस को याद रख सकता है? मुझे वाकई उस हकीकत पर बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा था किसी दिन उसके घर जाऊं, मगर काम की मसरूफियात की वजह से जाना ही भूल गई। इस वाक़े को 2 साल गुजर चुके थे। एक दिन मैं अपने क्लिनिक पर बैठी थी कि सिस्टर नुसरत ने बताया कि कोई रफ़ीक नामी नौजवान आपसे मिलना चाहता है और वो खुद को सबाहत का शौहर बताता है। मैंने कहा, कौन सबाहत? जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ इंजेक्शन लगवाने आया करती थी। अच्छा अच्छा, मुझे याद आ गया, उसे अंदर ले आओ। थोड़ी देर बाद एक खुश शक्ल और मुहज़्ज़ब नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। सिस्टर नुसरत ने तारुफ कराया। मैंने उसे बैठने को कहा और मसला पूछा तो वो बोला, इस वक्त बैठने का वक्त नहीं है, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, वो गाड़ी में बैठी है, एमरजेंसी है, प्लीज़ आप इसका चेकअप कर ले। मैंने फ़ौरन कहा, ठीक है, लेबर रूम खोल दो और सिस्टर से कहो बीवी को सहारा देकर अंदर ले आओ। सिस्टर नुसरत व्हीलचेयर गाड़ी के पास ले गई और रफ़ीक के साथ मिलकर सबाहत को गाड़ी से उतारा और लेबर रूम में ले आई। जब मैं लेबर रूम में गई तो मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक मलकूती मुस्कुराहट फैल गई। उसकी हालत से साफ जाहिर था कि वो माँ बनने वाली है। मैंने खुश होकर कहा, देखा अल्लाह ताला कितना गफूर रहीम है। आज अल्लाह ने तुम्हें औलाद की नेमत से नवाज दिया है। देखो अब तुम माँ बनने जा रही हो। कितनी मायूस थी तुम। थोड़ी देर में उसने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। अगले दिन जब उसकी हालत संभल गई तो मैं खुद उससे मिलने गई। मेरे पूछने पर उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू की कि उसके पहले शौहर ने उसे तलाक दे दी थी। फिर उसने बड़ी धूमधाम से दूसरी शादी अपनी खाला के बेटे से की। अब उसे औलाद हो जाएगी, मगर उसे फिर भी औलाद ना हुई। अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, मगर बूढ़ी माँ ने मजबूर कर दिया और मेरी दूसरी शादी कर दी। और अल्लाह ताला ने मुझे शादी के पहले ही साल औलाद की खुशी दे दी। ये अल्लाह ताला के करिश्मे है डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, मेरे नसीब में दूसरी शादी लिखी थी, क्योंकि मेरे मुकद्दर में औलाद थी, इसीलिए मुझे तलाक का दुख मिला था। तब मैं बहुत रोई, मगर कहते हैं ना कि हर दुख के बाद खुशी मिलती है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे शौहर पढ़े लिखे हैं, मेरी हर बात मानते हैं, मेरी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। शादी के बाद हम दूसरे शहर चले गए, मगर मेरा इरादा था कि बच्चे की पैदाइश आप ही के पास हो। जब वक्त आया तो मेरे शौहर मुझे आपके पास ले आए। सुबहत वाकई बहुत खुश थी, और क्यों ना होती, आज उसे एक अच्छा जीवन साथी और बेटे की नेमत मिल चुकी थी। नाज़रीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह की मज़ीद सबक व मुस्कानें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।